صدر کے ٹویٹ سے پیدا صورتحال مزید سنگین، عارف الوی کی اپنے سیکرٹری کو عہدے سے ہٹانے کی سفارش، وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری کو خط لکھ دیا، کہا سیکرٹری وقار احمد کی مزید خدمات درکار نہیں، ان کی خدمات اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو واپس کی جاتی ہیں۔ گریڈ بائٹس کی افسر حمیرہ احمد کو صدر مملکت کی سیکرٹری تعینات کیا جائے۔ عارف الوی نے فیصلہ گزشتہ روز کے بیان کے بعد کیا، صدر مملکت کا خط وزیر اعظم آفس کو موصول ہونے کے بعد کوئی رائے دی جائے گی۔ سیکرٹری وقار احمد کی گزشتہ سال گریڈ 22 میں ترقی ہوئی تھی، وہ اس سے پہلے بھی ایوان صدر میں ہی بطور ایڈیشنل سیکرٹری تعینات تھے، صدر کی خواہش پر ہی انہیں سیکرٹری لگایا گیا تھا۔ صدارتی سیکرٹری بھی میدان میں آ گئے، وقار احمد کا عارف الوی کو خط لکھا، میری خدمات واپس کرنے کی سفارش غیر منصفانہ فیصلہ ہے، صدر ایف آئی اے یا کسی اور ایجنسی سے معاملے کی تحقیقات کرائیں، کسی افسر سے کوتاہی ہوئی تو تحقیقات کر کے تعین کریں۔ آپ نے خدمات اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو واپس کرنے کو کہا، عوام کے لیے پیغام دیا، سیکرٹری بلوپال خلاف ضابطہ سرگرمی میں ملوث ہیں، صدر نے بل منظور کیا، نہ پارلیمنٹ کو واپس بھیجنے کا تحریری آرڈر دیا۔ وزیر اعظم کی ایکٹ پر ایڈوائس 2 اگست کو ملی، 10 دن کا وقت 11 اگست کو پورا ہوا، صدر نے فائل آج تک سیکرٹری آفس کو واپس نہیں بھیجی۔ پتہ لگا تو میں آپ کو دل سے بتا رہا ہوں، میں بڑا دکھی ہوا۔ میں آپ کو صرف یہ ایشور کرانا چاہتا ہوں کہ کبھی نہ صرف کرسچن مائنورٹی کے ساتھ، چاہے وہ کسی بھی قسم کی مائنورٹیز سے بلانگ کرتے ہوں، اگر ان کی جان و مال پہ کوئی بھی شخص، کوئی بھی گروہ حملہ آور ہوگا تو ریاست اور ریاست کے قوانین کو آپ مظلوم کے ساتھ پائیں گے، ظالم کے ساتھ نہیں پائیں گے۔ اقلیتوں کے تحفظ پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، دشمن کو انصاف کے کچہرے میں لائیں گے، نگران وزیر اعظم کا متاثرین جڑوالا سے وعدہ، کہا سانحہ جڑوالا معاشرے میں موجود ایک مرض کی نشاندہی کرتا ہے، سانحہ پر بہت دکھی ہیں، اقلیتوں پر کوئی بھی ظلم کرتا ہوا پایا گیا تو اقلیتی برادری ریاست کو اپنے ساتھ پائیں گے۔ ملک میں کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں مسیحی برادری کا کنٹریبیوشن نہ ہو، انتہا پسندی کا کسی مذہب، فرقے یا علاقے سے کوئی تعلق نہیں، اقلیتوں کے تحفظ کی ذمہ داری ہم سب پر ہے۔ نگران وزیر اعظم نے متاثرین کو گلے لگایا، داد رسی کی، متاثرین میں چیکس تقسیم کیے، انصاف کی فراہمی کی یقین دہانی کرائی۔ بھارتی فوج کی کنٹرول لائن کی خلاف ورزی، نکیال سیکٹر میں بلا اشتعال فائرنگ سے 60 سالہ شہری شہید، 3 خواتین زخمی ہو گئیں، پاکستان کا شدید احتجاج، ISPR کے مطابق بھارت کو اپنی مرضی کے وقت اور جگہ پر بھرپور جواب دیا جائے گا، شہریوں کی جان اور مال کے تحفظ کے لیے مکمل اقدامات کیے جائیں گے۔ ڈالر قابو سے باہر، روپیہ بے حال، اوپن مارکیٹ میں $1 305 روپے کا ہو گیا، انٹر بینک میں بھی $1.36 کا اضافہ، $297.13 پر بند ہوا۔ اوپر کرنسی مارکیٹ میں ڈالر نے $3 کی چھلانگ لگائی، پاکستان سٹاک مارکیٹ میں بھی مندی کے سائے، 100 انڈیکس میں 770 پوائنٹس کی کمی، انڈیکس 47,400 کی سطح پر بند۔ آفیشل سیکریٹ ایکٹ کے تحت اسلام آباد میں خصوصی عدالت قائم، سائفر کیس میں شاہ محمود قریشی کا جسمانی ریمانڈ بھی دے دیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ابو الحسنات محمد ذوالقرنین کو خصوصی عدالت کا جج مقرر کیا گیا۔ آفیشل سیکریٹ ایکٹ کے تحت ملک میں صرف ایک ہی عدالت قائم کی گئی۔ عدالت نے پہلا مقدمہ شاہ محمود قریشی کا سنا، ان کیمرہ سماعت میں غیر متعلقہ افراد کو باہر نکال دیا گیا۔ شاہ محمود قریشی کو 4 روزہ جسمانی ریمانڈ پر FIA کے حوالے کر دیا گیا، 25 اگست کو دوبارہ پیش ہونے کا حکم۔ ادھر آفیشل سیکریٹ ایکٹ پر عمل درآمد روکنے کے لیے درخواست آئے، لاہور ہائی کورٹ میں درخواست گزار نے موقف اپنایا، صدر کے انکار کے بعد ایکٹ کی کوئی قانونی حیثیت نہیں رہی۔ جب تک پریزیڈنٹ صاحب سائن نہیں کرتے بل کو، اس کو سینٹ نہیں کرتے، تب تک وہ قانون نہیں بنتا۔ تو یہ جو نوٹیفیکیشن بھی ہے اور جو بل ہے، میری نظر میں ابھی کاغذ کا ٹکڑا ہے۔ نہایت غیر مناسب تھی، صدر مملکت ہیں، از ہیڈ آف دا فیڈریشن، اور یہ مناسب نہیں تھا جس طرح انہوں نے ٹویٹ کیا، ان کے پاس آئینی راستہ موجود تھا۔ صدر کے بیان پر بحث مزید گرم، PTI کے سینیٹر علی ظفر نے آفیشل سیکریٹ ایکٹ کا نوٹیفیکیشن کاغذ کا ٹکڑا قرار دے دیا،
कहा सदर के दस्तखत तक बिल कानून नहीं बन सकता। कानून तब बनेगा जब मुश्तरका पार्लियामेंट बिल दोबारा सदर को भेजती है। इसके बाद 10 दिन में सदर दस्तखत ना करे तो बिल कानून की शक्ल इख्तियार करेगा। पीपल्स पार्टी के सेनेटर अजहर अब्बानी बोले, सेनेट सदर मुमलिकत के खिलाफ इंक्वायरी कर सकती है। गलत बयानी साबित होने पर सदर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जानिब से किया गया ट्वीट गैर मुनासिब था। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, खुद साख्ता तर्जुमान खुद सदर के मौक़िफ़ की नफी कर रहे हैं। सदर वाज़े कर चुके, मैंने दोनों बिल्स पर कोई एतराज नहीं लगाया। दोनों बिल मुकर्ररा 10 दिनों में वापस नहीं गए। इस गलती से बिल कानून बन चुके हैं। अब लोग इस कानून के तहत सजा पाएंगे। शहबाज शरीफ लंदन में मौजूद, नवाज शरीफ से 1-on-1 मुलाकात होगी। पार्टी रहनुमाओं के साथ भी मुलाकात का इम्कान। नून लीग के बड़ों की बड़ी बैठक की तैयारियां भी जारी। शहबाज शरीफ मुमकिन उम्मीदवारों की फहरिस्त इजलास में पेश करेंगे। निगरान वज़ीर कानून अहमद इरफान असलम की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात 1 घंटे मुलाकात जारी रही। निगरान वज़ीर कानून सहाफ़ियों से बात किए बगैर सुप्रीम कोर्ट से चले गए। पंजाब हुकूमत की अपील खारिज। परवेज इलाही को खुफिया मुकदमात में गिरफ्तार न करने का फैसला बरकरार। लाहौर हाई कोर्ट ने सिंगल बेंच के फैसले को दुरुस्त करार दे दिया। पंजाब हुकूमत के सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ अपील फारिग। परवेज इलाही की थाना गालिब मार्केट में दर्ज दहशतगर्दी के मुकदमे में हिफाजती जमानत बहाल हो गई। उधर करप्शन केस में परवेज इलाही का रिमांड मंजूर 29 अगस्त तक नैब के हवाले कर दिया गया। एहतसाब अदालत में केस समाअत। रोस्ट्रम पर आकर परवेज इलाही ने कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं, गुजारिश से जाती मौलज को चेकअप करने की इजाजत दी जाए। खानदान के साथ 1 हफ्ते में 1 मुलाकात होती है। अदालत की जाती मौलज फराहम करने की हिदायत। अहले खाना से मिलने की इजाजत भी दे दी। मीडिया से गैर रस्मी बातचीत में परवेज इलाही ने कहा, मेरा पैगाम है पीटीआई के साथ खड़े रहें। मुल्क भर में बिजली के यकसा टैरिफ को खत्म करने का फैसला। हर सूबे में बिजली के रेट और सब्सिडी की जिम्मेदारी सूबों को मुंतकिल होगी। निगरान हुकूमत का बिजली की फरोख्त, तकसीम और टैरिफ का मौजूदा निजाम खत्म करने का फैसला। निगरान वजीर आजम ने समरी वफाकी काबीना को भेजने की मंजूरी दे दी। दरियाए सतलुज में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। भारत का छोड़ा गया पानी बहावलपुर में दाखिल। हेड सुलेमानकी के मकाम पर भी हाई फ्लड अलर्ट जारी। दफा 144 नाफिज। मसाजिद में शहरियों के इंखला के लिए ऐलानात। तर्जुमान पीटीएमए के मुताबिक कसूर में 24,000 से ज्यादा अफराद और 16,000 मवेशियों को रेस्क्यू किया जा चुका है। पाकपतन में 52, बहावलपुर में 30, बिहाड़ी में 17 फ्लड रिलीफ कैंप कायम। कसूर में 13 और अकाड़ा में 11 रिलीफ कैंप कायम किए गए। नई हल्का बंदियों का आगाज। पहले मरहले में हल्का बंदियों से मुतालिक कमेटियां तश्कील दी जाएंगी। दूसरे मरहले में कमेटियां ज़राई नक्शाजात और आबादी समेत जरूरी डाटा हासिल करेंगी। कमेटियां 31 अगस्त तक ज़राई मरदमशुमारी रिपोर्ट और दीगर मालूमात लेंगी। तीसरे मरहले में हल्का बंदियां कमेटियों की 4 रोजा ट्रेनिंग होगी। 8 सितंबर से 7 अक्टूबर तक इब्तदाई हल्का बंदियां मुकम्मल की जाएंगी। 9 अक्टूबर को इब्तदाई हल्का बंदियों की तफसीलात शाया होंगी। एतराज़ात या तजावीज़ 10 अक्टूबर से 8 नवंबर तक दायर हो सकेंगी। इलेक्शन कमीशन 9 दिसंबर तक एतराज़ात पर समाअत करके फैसला करेगा। हतमी हल्का बंदियां 14 दिसंबर तक मुकम्मल होंगी। उधर नई हल्का बंदियां कराने का नोटिफिकेशन। लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। हल्का बंदियों से मुतालिक नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की इस्तदा। इलेक्शन कमीशन में आम इंतखाबात की तैयारियों से मुतल्लिक़ इजलास। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का अब तक के इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। कहा, इंतजामात की फौरी तकमील और इलेक्शन मटीरियल की दस्तयाबी यकीनी बनाए। किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यकीनी बनाए हल्का बंदी के लिए जरूरी इक़दाम किए गए। चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना से मुतालिक अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच 23 अगस्त को समाअत करेगा। चीफ जस्टिस
जस्टिस मुजाहिर नकवी और जस्टिस जमाल मंदोखेल बेंच का हिस्सा। चेयरमैन पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 अगस्त के फैसलों को चैलेंज किया था। ईमान मजारी और अली वजीर 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। इंसदादे दहशतगर्दी के जज अबुल हसनात जुल्करनैन का दोनों को 24 अगस्त को पेश करने का हुक्म। शीरी मजारी को बेटी की जान का खतरा कहा, बेटी को धूप में बिठाए रखा। ईमान थाने पहुंची तो बेहोश हो गई। बेटी की सेहत को शदीद मसाइल हैं, अदालतें मुल्क में इंसानी हकूक की हिफाजत करें। आइन के मुताबिक सदर बिल को बगैर तबसरे के भी वापस भेज सकते हैं। तहरीक इंसाफ का कहना है आर्टिकल 75 के तहत कानून साजी के लिए सदर की मंजूरी जरूरी है। सदर के इनकार के बाद किसी तहरीरी वजाहत की जरूरत नहीं रही। इन तरामीम की कोई कानूनी हैसियत नहीं रही। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की सदर की ट्वीट पर सुप्रीम कोर्ट से नोटिस लेने की अपील। कहा आइन को 50 साल मुकम्मल हो गए, एक रोज भी नाफिज नहीं हुआ। अगर आइन नाफिज हो जाए तो चंद खानदानों की बजाय कानून की हुकूमत होगी। निगरान हुकूमत उछल-कूद की बजाय शफाफ इलेक्शन करवाए। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन मुलतवी करने की साजिश की। अदालत कई मामलात में उलझी है, माशी मसाइल में ना उलझाएं। सुप्रीम कोर्ट के आईनी हद से ज्यादा कर्जे लेने से मुतालिक केस में रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने कहा मुल्क शदीद माशी मुश्किलात से दो चार है। आखिर मुल्क में इतना कर्ज क्यों लिया गया, ये बेहतर वक्त नहीं है अदालत इस किस्म की दरख्वास्त को सुने। रावलपिंडी में मंकी पॉक्स का पहला केस सामने आ गया। मरीज होली फैमिली अस्पताल में जेर इलाज। गोजर खान के 28 साल नौजवान में मंकी पॉक्स की तस्दीक हुई। बलोचिस्तान की निगरान टीम भी तैयार। निगरान सूबाई काबीना ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर बलोचिस्तान ने नई काबीना से हल्फ लिया। समसाम बुखारी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के हो गए। IPP में शमूलियत का बाकायदा ऐलान। जहांगीर तरीन का कहना है सदर मुमलिकत की बात सुनकर अफसोस हुआ। आम इंतखाबात मार्च से आगे नहीं जा सकते। तहरीक इंसाफ समेत किसी सियासी जमात पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। जड़ावाला की फजा भी सोगवार। मसीही बरादरी गम से निठा। 2 गिरजा घरों की मरम्मत के बाद मुकम्मल उन्हें बहाल कर दिया गया। इबादत का सिलसिला शुरू। दर्जनों मुतासरीन ताहाल रिलीफ कैंप में मौजूद। तबाहाल मकानात की बहाली का काम भी जारी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना है जड़ावाला वाकया बहुत बड़ा सानहा है। सारा फोकस मुलजिमों को सजा देने पर है। मरकजी मुलजिमान गिरफ्त में हैं, दीगर को भी ट्रेस किया जा रहा है। आखिरी मुतासरा खानदान की बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। गालियां देने वाले पुलिस एहलकार को IG ने गले लगा लिया। IG पंजाब उस्मान अनवर की एहलकार से मुलाकात। माहिर नफ्सियात से कांस्टेबल शाहिद के इलाज के बारे में पूछा। IG ने कहा किसी की बीमारी का मजाक बनाना दुरुस्त नहीं। डेली रूटीन से आ रहे हैं। गर्मी है थोड़ी सी लेकिन सही है, जा रहे हैं। स्कूल दोबारा से ओपन हो गया, हमारी रूटीन वैसे ही स्टार्ट हो गई। अब हम अपने टीचर से मिले हैं, फ्रेंड से मिले हैं। एक नई फ्रेश फीलिंग आ रही है। काफ़ी मज़ा किया हमने, स्टडीज़ भी साथ साथ हैं, इंजॉयमेंट भी थी। काफ़ी लंबे ब्रेक के बाद अपने फ्रेंड से मिले, एक अच्छा फील हो रहा है। स्टडी वाली रूटीन वापस शुरू हो गई है। काफ़ी हमें एक्साइटमेंट भी थी कि जल्दी छुट्टियां ख़त्म हो ताकि हम अपने फ्रेंड से भी मिलें। पंजाब भर में तालीमी इदारे खुल गए। बच्चे हंसते रोते स्कूलों को पहुंचे। पहले दिन हाजिरी मामूल से कम रही। स्कूल कॉलेजेस खुलने से सड़कों पर ट्रैफिक भी बढ़ गई। सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर पाकपतन के 11 और आरिफवाला के 6 स्कूल बंद।
मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने गुलिस्तान जौहर अंडरपास का इफ्तिताह कर दिया। कहा, पीपल्स पार्टी इख्तियारात का रोना नहीं रोती, कराची के आवाम को सहूलियात फराहम कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी बिला तफरीक आवाम की खिदमत करती है। लाहौर के सफारी ज़ू में नन्हे मेहमान की आमद, ज़ीब्रा, नीलगाय और बंदर के यहाँ बच्चों की पैदाइश, तमाम जानवर सेहतमंद हैं। नए मेहमानों की आमद से सफारी की रौनकें भी बढ़ गईं। नया मैदान, नया इम्तिहान। पाक अफगान वनडे सीरीज का पहला मैच कल हैमंटोटा में खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दिन 1 बजे शुरू होगा। पाक अफगानिस्तान के खिलाफ अब तक खेले गए 4 मैच जीत चुका है। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ की दोपहर के खाने पर कौमी क्रिकेटर से मुलाकात। कहा, अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज और एशिया कप में टीम कामयाब होगी। एशिया कप के लिए 17 रुकनी इंडियन टीम का ऐलान। टीम की क़यादत रोहित शर्मा करेंगे। केएल राहुल की वापसी, बुमराह और जडेजा का भी इंतखाब। रोहित शर्मा कहते हैं, इवेंट में पाकिस्तान की नहीं, तमाम टीमें मजबूत हैं। शाहिद आफरीदी ने अमेरिका में भी बॉलर्स को दिन में तारे दिखा दिए। शाहिद आफरीदी की मास्टर्स टी10 लीग में जारहाना इनिंग्स, 12 गेंदों पर 37 रन बना डाले। लंदन प्रीमियर लीग में आसिफ अली ने भी बॉलर्स के छक्के छुड़ा दिए। टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच ने विंबलडन की हार का बदला ले लिया। सिंसिनाटी ओपन के फाइनल में नोवाक ने अल्कारेज को शिकस्त दे दी। जोकोविच ने अल्कारेज को 7-6, 5-7 और 7-6 से हराया। एसाब शिकन मुकाबला 4 घंटे तक जारी रहा।